So dear students, today's topic is partially ordered set. Okay, आज हम partially ordered set को define करते हैं, फिर इस पे कुछ examples करेंगे. So partially ordered set is consider a relation capital R on a set S satisfying the following properties. Consider a relation R on the set capital S satisfying the following properties. First one is R is reflexive. Reflexive का property हमें पता है क्या है? x related to x for every x. किसी भी सेट में जितने भी मेंबर्स है वो सारे सेम से रिलेटेड होंगे. मीन्स 2 4 6 8 है तो 2 रिलेटेड टू 2, 4 रिलेटेड टू 4 और जो भी उनका रिलेशंस डिफाइन होगा. क्लियर. सेकेंड वन आर इज एंटी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक से अपोजिट होता है. दैट इज x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x. x y से रिलेटेड होगा और y x से रिलेटेड होगा. देन इट विल बी implies that x equals to y. Clear. X related to y and y related to x, then it will imply x equals to y. And third one R is transitive. Equivalence relation का properties है reflexive. वहाँ पे symmetric होता था और यहाँ anti symmetric है. इतना ही difference है. Third one is R is transitive. That is x related to y and y related to z, then x related to z. First second से related हो, second third से related हो, तो first और third आपस में related हो. Clear. Then x related to z. Then capital R is called a partially ordered relation, and the set capital S together with partial order is called a partially ordered set, and it will also named as POSET. That is POSET capital letters में लिखते हैं. तो या तो आप POSET बोलो या partially ordered set बोलो. Clear. And is denoted by capital S and comma with binary operation, that is less than equals to. Clear. So this is the बेसिक डेफिनेशन ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, दैट इज पोसेट. अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज कंसीडर ए सेट A इक्वल्स टू 4 9 16 and 36. इज द रिलेशन डिवाइड्स ए पार्शियल ऑर्डर. रिलेशन डिफाइनेड एज अ डिवीजन. ओके, और चेक करना है क्या ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं. ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव. Clear. So for reflexive we have for every A belongs to this one, means for every A belongs to this one, A related to A or X related to X होना चाहिए. वेरी सिंपल. 4 4 को डिवाइड करेगा, 9 9 को डिवाइड करेगा, 16 16 को डिवाइड करेगा और 36 36 को डिवाइड करेगा. क्लियर. सो रिफ्लेक्सिव इट इज रिफ्लेक्सिव 100%, नो प्रॉब्लम. Means for x related to x, that is for every x belongs to set A, we have x divides x, therefore it is reflexive. Second one, it is antisymmetric. So for antisymmetric we have if x divides y and y divides x y को डिवाइड करता है और y x को डिवाइड करता है, तो क्या होना चाहिए देन x equals to y. इज इट करेक्ट? 100%. देखिए अगर 4 divides 4 and again 4 divides 4. Here this 4 terms as x and this 4 terms as y. Clear. So easy है. If A divides B and B divides A, then this is equivalent. ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. थर्ड वन means this is the property of antisymmetric, hence it is antisymmetric. Third one, that is transitive. If x divides y, y divides z, then x should divide z. X divides y, y divides z, then x divides z.
ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। होगा 100%। अगर x y को डिवाइड करता है y और y z को डिवाइड करता है तो x z को डिवाइड करेगा। Hence it is transitive। थर्ड आप सेम ले सकते हो, दैट इज 4 डिवाइड्स 16 और 16। थर्ड वन चूंकि दो ही नंबर है तो हमें क्या करना होगा, रिपीट करना होगा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 डिवाइड्स 4 4 4 डिवाइड्स 4 देन 4 डिवाइड्स, मीन्स हमने एक्स वाई जेड सेम कंसिडर कर लिया। और यहाँ पे क्या है, इस प्रॉपर्टी में एवरी नहीं लगा हुआ है, जैसे फर्स्ट में लगा हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस वन, बाकी के लिए कोई भी एक ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे जी, ट्रांजिटिव और एंटीसिमेट्रिक। हेंस द गिवन रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। वेरी सिंपल है कि अगर कोई भी रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन द गिवन रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन and the given set is known as partial ordered set or poset. Okay, now next question related to partial ordered set is this. Let consider a set S, capital S equals to a comma b comma c. Is the relation of set inclusion, that is this one subset, is a partial order on P of S. P of S, that is where P of S is a power set of S. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी सेट का पावर सेट क्या होता है। क्लियर? तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट नोन एज पावर सेट। उस सेट का जितने भी सबसेट होगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट, मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, दैट इज P of S. सो P of S इक्वल्स टू, पहले सिंगल सिंगल ले लें, दैट इज सेट A, देन सेट B, सेट को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, सेट B, सेट C, फिर डबल डबल ले लो आप A B, देन B C, देन A C, देन A B and C, और लास्ट वन इज दैट इज एम्प्टी सेट, दैट इज 5. So this is 5. Clear? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे पावर सेट में, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 to the power n. कितने होते हैं, 2 to the power n. 1 1 2 3, that is 2 to the power 3. That is total number of elements 8 होंगे. Calculate 1 2 3 4 5 6 7 8. Clear? So this is the collection of all the subsets of that set known as power set. Now we have to check either the given relation is reflexive, antisymmetric and transitive in this set. क्या इस given set पे जो सबसेट है वो हमारा ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, सेकेंड वन एंटीसिमेट्रिक एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, लेट तीन सेट सपोज कर रहे, लेट A, B, C be any सेट ऑफ द पावर सेट S. पावर सेट का हमने कोई भी तीन सेट ले लिया. देन एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ A. हर एक सेट अपने सेट का खुद का सबसेट होता है, तो क्या होगा, इट इज देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. सेकंड वन एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, that is if A is a subset of B and B is a subset of A, then A equals to be 100%. और A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो A equals to B होगा, तभी ऐसा कंडीशन होता है. therefore it is antisymmetric. थर्ड वन ट्रांजिटिव, थर्ड वन ट्रांजिटिव means if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C 100%. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि A अगर B का सबसेट है मीन्स
ऐसा हो सकता है क्या कि बी के पास कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो, बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो सी क्या हो गया, सुपरसेट हो गया सबका, देन 100% ए इज द सबसेट ऑफ सी, मींस ये भी होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। हेंस द गिवन रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन एंड द गिवन सेट इज अ पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। क्लियर? हमने पोस्टेड पे डेफिनेशन के साथ 2 एग्जाम्पल भी किए हैं। ओके।